ઓમ શાંતિ. આજે તારીખ 23 જુલાઈ 2021. બાબાના મધુર મીઠા મહાવાક્યો. मीठे बच्चे, तुम्हें अपना चिंतन करना है, दूसरे का नहीं, क्योंकि ड्रामा अनुसार जो करेगा वह पाएगा. ચિંતન કોનું કરવાનું છે? સ્વયંનું ચિંતન કરો. સ્વચિંતન એ ઉન્નતિની સીડી છે અને પરચિંતન એ પતનની જડ છે. માટે બાબા કહે છે પોતાનું ચિંતન કરો, સ્વયંનું ચિંતન કરો, બીજાનું કોઈ ચિંતન કરવાની જરૂર નથી. કારણ કે સ્વયંનું ચિંતન કરીશું તો ઉન્નતિ થશે. જે કરશે એ જ પ્રાપ્ત કરશે. તો પરચિંતન કરીશું તો લોકો આપણી બી ક્યાંક નિંદા ખુથલી કરતા રહેશે અને એ બી આપણું નુકસાન છે, પાપ કર્મના ખાતામાં જમા થાય છે. प्रश्न, त्रिकालदर्शी बनने से आत्मा को कौन सी स्मृति आई? त्रिकालदर्शी बनवाથી આત્માને કઈ સ્મૃતિ આવી છે? તો आत्मा को स्मृति आई, हम असूल मूल वतन के निवासी इस ड्रामा में पार्ट बजाने आए हैं. આત્માની અંદર કઈ સ્મૃતિ આવી છે કે આપણે મૂળ વતનના નિવાસી છીએ, પરમધામના નિવાસી છીએ અને આ સૃષ્ટિ પર પાર્ટ ભજવવા માટે આવ્યા છીએ. हमने मुख्य एक्टर बन 84 जन्मों का पार्ट बजाया, अभी बाप के सन्मुख हैं और साथ में घर जाएंगे. કઈ સ્મૃતિ આવી કે આપણે પરમધામથી સૃષ્ટિ ઉપર પાઠ ભજવવા આવ્યા, 84 જન્મો પાઠ ભજવ્યા, એમાં મુખ્ય એક્ટર બનીને પાઠ ભજવ્યું છે. હવે બાપ આવ્યા છે, ફિર સાથ में घर ले जाएंगे, पावन बनकर घर जाना है, फिर सुखधाम में आना है. પાવન બનીને પાછું પરમધામ બી જવાનું છે. કારણ કે ભગવાન આવ્યા છે આપણને પરમધામ લઈ જવા માટે, તો પરમધામ પણ જવાનું છે, પાછું સુખધામ એટલે સત્યુગી દુનિયામાં પણ આવવાનું છે. यह सारा खेल भारत पर ही बना हुआ है. यह सारी स्मृति त्रिकालदर्शी बनने से आगे. ત્રિકાલદર્શીમાંના ત્રણેય કાળોનું જ્ઞાન. તો ત્રણેય એટલે આપણી આત્માનું આદિ, મધ્ય, અંત. આદિમાં આપણે પરમધામથી આ સૃષ્ટિ પર આવ્યા, સૃષ્ટિ પર મધ્યમાં પાઠ ભજવ્યો. હવે અંતનો સમય છે, પરમાત્મા આવ્યા છે અને પરમાત્મા આવીને પુનઃ આપણને પાવન બનાવી રહ્યા છે અને પાવન બનીશું તો બાબા સાથે વાપીસ પરમધામ જઈશું. ગીત, મરના તેરી ગલી મેં, જીના તેરી ગલી મેં. મને હવે તન, મન, ધન, સંબંધ, સંપર્ક બધું જ બાબાને સોંપી દીધું. તો ચાહે મરીએ તો બી બાબાની યાદમાં અને જીવીએ તો બી બાબાની યાદમાં. ઓમ શાંતિ. यह गीत किसने गाया है? मरना तेरी गली में, जीना तेरी गली में. यह गीत किसने गाया? बच्चों ने गाया ना. क्या कहते हैं बच्चे? बाबा अभी तो आपके गले का ही हार बनना है. બાળકો શું કહે છે બાબાને? बाबा आपके गले का हार ही बनना है और कुछ करना ही नहीं है. यह शरीर तो यहाँ ही छोड़ देना है. शरीर तो અહીંયા छूटी जैसे. बच्चे जानते हैं शांति धाम व निर्वाण धाम में बाप और हम आत्माएं रहते. પરમધામમાં કોણ રહે છે? માત્ર પરમાત્મા અને આપણી આત્માઓ. अब बाप घड़ी घड़ी कहते हैं अपने को आत्मा निश्चय करो. ગઈકાલે બી બાબાએ કઈ વાત કરી હતી? બાબાએ પહેલો પાઠ કયો પાકો કરાવ્યો છે? अपने को आत्मा निश्चय करो, मन मना भव बनो. તો આજ બી બાબા ઘડી ઘડી યાદ અપાવે છે, अपने को आत्मनिश्चय करो. तुम जानते हो हम आत्माएं बाप के साथ निर्वाण धाम में रहने वाले थे. फिर यह शरीर धारण कर 84 जन्मों का चक्र लगाया.
बच्चे जानते हैं हम बरोबर परम धाम के निवासी हैं। કારણ કે આપણે 84 જન્મોનું ચક્ર લગાવ્યું, પરમધામથી નીચે આવ્યા, બધી વાત બરાબર છે. હવે બાબાએ એ વસ્તુ બી સમજાવી છે કે આપણે રહેવાવાળા મૂળ ક્યાંના છે? આપણી આત્મા તો પરમધામની નિવાસી છે. अब फिर बाबा आए हैं, तुम बैठे हो, देखते हो, बाबा सामने बैठे हैं. જોઈએ છે ને બાબા ક્યાં બેઠા છે? બ્રહ્માતનની અંદર આપણી સન્મુખ છે. યહાં હૈ લૌકિક શરીર के संबंध, हम असूल आत्माएं थी, फिर लौकिक संबंध में सुख का और दुख का जीवन बिताया. परम धामમાં હતા તો ઓરિજિનલ તો આપણું સ્વરૂપ આત્મિક સ્વરૂપ છે, પરંતુ પરમધામથી નીચે આવ્યા, જન્મોમાં આવ્યા તો જન્મ લીધો તો લૌકિક સંબંધો આવ્યા અને લૌકિક સંબંધોમાં સુખ અને દુઃખનું જીવન પસાર કર્યું. અભી તુમ આત્માએ ત્રિકાલદર્શી બની હું, बाप भी तीनों कालों तीनों लोकों को जानने वाला है. तुम भी जानते हो नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार. पढ़ाई की याद तो रहनी चाहिए ना, अभी स्मृति आई है. બાબા કહે છે જે જ્ઞાન આપીએ છીએ એની યાદ તો રહેવી જોઈએ ને, કારણ કે બાબાએ હવે આપણે સ્મૃતિનું વરદાન આપ્યું, દિવ્ય બુદ્ધિનું વરદાન આપ્યું, તો દિવ્ય બુદ્ધિની અંદર આ દિવ્ય જ્ઞાન તો ઠહેરવું જોઈએ. તો बाबा ने समझाया है तुम मूल वतन में रहने वाले हो, अभी तुम बाप दादा त्रिकालदर्शी बने हो. तुम जानते हो इस ड्रामा के हम मुख्य एक्टर्स हैं. कौन है हम? इस ड्रामा के मुख्य एक्टर्स. सारे ड्रामा का नॉलेज तुम्हारी बुद्धि में अब है. બાબાએ આપણી બુદ્ધિમાં સૃષ્ટિ ચક્રનું જ્ઞાન આપ્યું છે, તો હવે સમગ્ર સૃષ્ટિ ચક્રનું જ્ઞાન આપણી બુદ્ધિમાં બેઠું. સ્મૃતિ आई है, हम आधा कल्प सुख धाम में रहते हैं. કઈ સ્મૃતિ આવી? કે સતયુગ ત્રેતાયુગ અડધો કલ્પ 2500 વર્ષ સુધી આપણે સુખધામમાં રહીએ છીએ. વહાં રાવણ હોતા નહીં. हम आत्माएं पूरे 84 जन्मों का चक्र लगाती हैं. अभी बाप सन्मुख बैठे हैं, आपकी श्रीमत पर चल, हम आपके साथ चलेंगे. બાબા આપણી સન્મુખમાં છે અને જ્ઞાન આપે છે, તો બાબાની શ્રીમત પર ચાલીશું, તો બાબાની સાથે જઈશું. जितना हो सके आपको याद करेंगे. જેટલું બને એટલું કોને યાદ કરવાના છે? બાબાને. तुम बच्चों को सारा दिन यही ख्याल में रहना चाहिए. जबकि त्रिकालदर्शी बने हो. બાબાએ આપણને ત્રિકાલદર્શીનું જ્ઞાન આપ્યું, વરદાન આપ્યું, ત્રિનેત્રી દિવ્ય બુદ્ધિ વિધાતા વરદાન આપ્યું છે. તો બાબા કહે છે હવે આ જ વિચારો મારો કે આપણને કોણ મળ્યું છે? તો ઊંચામાં ઊંચા ભગવાન મળ્યા છે. उनके साथ तुम बच्चे भी ऊंचते ऊंच रहने वाले हो. ઊંચામાં ઊંચા પરમપિતા પરમાત્મા છે અને આપણે એમની સાથે રહેવાવાળા ઊંચામાં ઊંચા છીએ. अभी तुम बच्चों को घर की याद आई है, हम पवित्र बन अपने परमधाम घर जाएंगे. કઈ યાદ આવી છે? ઘરની ઘર એટલે પરમધામની યાદ આવી. તો પરમધામ કઈ રીતે જઈશું? પવિત્ર બનીશું તો આપણને પોતાના ઘરે પરમધામ જવા મળશે. बाप शिव की पूजा होती है तो शालिग्रामों की भी पूजा होती है. बाप ही आकर आत्माओं को पावन बनाते हैं. તો જેવી રીતે શિવ બાબાની પૂજા થાય છે, તો શિવ બાબાની સાથે સાથે શાલિગ્રામોની બી પૂજા થાય છે. તો બાબા આવીને આત્માઓને પાવન બનાવે છે. આત્માઓ કો પવિત્ર બનાને વાલા એક ही बाप है. પવિત્ર બનાવવાવાળા કોણ છે? એક નિરાકાર પરમ પિતા પરમાત્મા, और कोई बना न सके.
अभी तुम सारे ड्रामा के खेल को जान चुके हो। ખબર પડી ગઈ છે નાટકની. તો બાબા કહે છે પવિત્ર બનાવવા વાળો તો હું એક જ છું, બીજું કોઈ આત્માઓને પવિત્ર બનાવી ન શકે. समझते हो भारत पर ही खेल बना हुआ है, तो अब तुम बच्चों को बाप सन्मुख बैठ समझाते हैं. हर एक जीव की आत्मा जानती है बाबा ज्ञान का सागर है. બાબા સન્મુખમાં જ્ઞાન આપી રહ્યા છે, સમજાવી રહ્યા છે. હરેક આત્માઓને બી ખબર છે કે પરમપિતા પરમાત્મા ज्ञानना सागर से उसको भक्ति मार्ग में बुलाते आए हैं और प्रतिज्ञा करते आए हैं. भक्ति मार्ग में एक ज्ञान सागर निराकार परमपिता परमात्मा ने बुलावता आवे छे अने ए જ્યારે એમનો સમય આવે છે એ સમય સૃષ્ટિ પર જરૂર આવે છે. પ્રતિજ્ઞા भी करते हैं. कौन सी? બોલાવીએ છીએ, આવે છે ને એના આગળ આપણે પ્રતિજ્ઞાઓ भी કરીએ છીએ. बाबा आप आएंगे तो जरूर हम आपकी मत पर ही चलेंगे. यह कोई लौकिक संबंध की बात नहीं. प्रतिज्ञाओं करिए छे, आप जब आएंगे तो आप पर हम वारी जाएंगे, बलिहार जाएंगे. तो बाबा के छे यहाँ कोई लौकिक संबंधनी बात नहीं. तुमको देही अभिमानी बन यह ख्याल रखना है कि हमको एक बेहद के बाप की श्रीमत पर चलना है. आत्मा अभिमानी बनो अने आत्मा अभिमानी बनी ये ध्यान राखो कि बस एक बाबानी श्रीमत पर चालवानुं छे. उनका ही मानना है. वह तो बहुत सहज समझाते हैं. तुम्हारा अब तीसरा नेत्र ज्ञान का खुल गया है. બાબા સહજ વિધિથી આપણને સમજાવી રહ્યા છે અને બાબાએ એક જ્ઞાન આપીને એમના બનાવીને આપણું ત્રીજું નેત્ર જ્ઞાનનું ખોલી દીધું છે. यह ज्ञान तुमको यहाँ है. मूल वतन में बाप और बच्चे रहते हैं. परमधाम में कौन रहे छे? बाबा ने बाळको. वहाँ यह किसी को पता नहीं रहता. अभी तुम बच्चों को बाप अपना अंत देते हैं. बाबा शू आपे छे? पोतानो अंत, माने पोतानी अंदर जेटલું પણ જ્ઞાન છે हरेक ज्ञान आपे छे. वही ज्ञान का सागर है. और कोई सत्संगों में ऐसे नहीं कहेंगे कि बाबा हम आत्माओं को पढ़ाते हैं. यह तुम जानते हो. घड़ी घड़ी तुमको कहना पड़ता है देही अभिमानी बनो. बाबा ने घड़ी घड़ी शू कहवुं पड़े छे? आत्माभिमानी बनो. आत्मा इस ड्रामा में एक्टर है, पार्ट बजाती है. हम आत्मा ने चोला लिया है, वह एक्टर्स कपड़े बदलते. जेवी रीते नाटकनी अंदर जे पात्रो ए शू करे? पोताना कपड़ा बदले. एवी रीते अहींया आपणे आ शरीर बदलीए छीए. तुम आत्माए निराकारी दुनिया से यहाँ आकर यह शरीर रूपी चोला लेती हूँ. वह सिर्फ अपने कपड़े बदलते हैं. આપણે શરીર બદલીએ છીએ નાટકમાં, એક શરીર છોડી બીજું શરીર, અને દુનિયાની અંદર નાટકની અંદર સિર્ફ કપડાં બદલે છે. हम आत्माओं को बाबा फिर से आकर राजयोग सिखला रहे हैं. अब तुम बच्चे समझते हो बाबा आया हुआ है तो जरूर हम बाबा के मददगार बनेंगे. सुन बुद्धि में बैठू छे, बाबा आव्या छे तो जरूर आपणे बाबाना मददगार बनवानुं छे. पवित्र बन और सारे भारत को पवित्र बनाएंगे. पवित्र बनवानुं छे अने समग्र भारतने पवित्र बनावानी सेवा भी करवानी छे. हमको श्रीमत पर ही चलना है. एक बाबानी मत पर ज चालवानुं छे. बीजा कोईनी मत अनुसार कर्म करवाना नहीं. श्रीमत कहती है बाप को याद करना है,
जो करेंगे वह पाएंगे। શ્રીમદ શું કહે છે? એક બાબાને યાદ કરો અને જેટલું બાબાને યાદ કરશે, જે કરશે એ પ્રાપ્ત કરશે। सब तो नहीं आकर पुरुषार्थ करेंगे, બધા તો અહીંયા આવીને પુરુષાર્થ નહીં કરે। जिन्होंने कल्प पहले पुरुषार्थ किया है वही करेंगे। अभी वापस जाना है, इसीलिए पुरुषार्थ कर पवित्र जरूर बनना है। હવે વાપીસ પરમધામ જવાનું છે તો પુરુષાર્થ કરીને પવિત્ર 100% બનવાનું છે। हम ऊपर मूल वतन में रहने वाले, पहले पहले हम स्वर्ग में आए थे, फिर सीढ़ी नीचे उतरते आए। पहला पहला क्या था? स्वर्ग में, પછી सीढ़ी नीचे उतरता આવ્યા। बाप समझाते भी भारतवासियों को है, ભારત में ही आते हैं। બાબા સમજાવે બી ભારતવાસીઓને છે અને બાબા આવે પણ ભારતની અંદર જ છે। याद भी भारत में करते हैं कि आकर हमें पावन बनाओ, शरीर धारण कर हमको श्रेष्ठ कर्म सिखलाओ। याद भी बाबा भारतમાં કરે છે ને, આવે બી છે। યાદ બી આપણે ભારતમાં જ કરીએ છીએ, ભારતવાસીઓ જ પરમાત્માને યાદ કરીએ છીએ કે હે પરમપિતા પરમાત્માઓ આવીને પાવન બનાવો। તો બાબા શરીર ધારણ કરી અને આપણને શ્રેષ્ઠ કર્મ શીખવાડે છે। शरीर का नाम भी गाया हुआ है। कौन सा शरीर धारण करते हैं? यह भाग्यशाली रथ है जिसको हम कहते हैं प्रजापिता ब्रह्मा। तो बाप भी कहते हैं मैं साधारण तन में प्रवेश करता हूँ। आगे भी कहा था तुम बच्चों को स्मृति आई है, बरोबर 5000 वर्ष पहले भी बाबा ने यही कहा था। 5000 वर्ष पहला भी बाबाए आ ज વાત કરી હતી કે હું આ સૃષ્ટિ પર આવું છું, આવીને પતિત આત્માઓને પાવન બનાવવાની સેવા કરું છું અને આવવા માટે એક સાધારણ મનુષ્ય તનનો આધાર લઉં છું। और कोई भी बात बता नहीं सकते हैं। बाप ही कहते हैं हर 5000 वर्ष पहले भी मैंने इस शरीर में आकर तुमको समझाया था। बाबा आવીને શું કહે છે? हर 5000 वर्ष पहले भी बाबा ने कहा था और इस शरीर में आकर हमको समझाया था। अब फिर तुम बच्चों को कहता हूँ आत्म अभिमानी बनो। 5000 वर्ष पहला भी समझाव्या था, હવે ફરીથી બાબા કહે છે કે આત્માભિમાની બનો। जैसे नाटक वालों को मालूम रहता है ना हम कौन सा वस्त्र पहन कर क्या क्या पाठ बजाते हैं। કારણ કે જેવું પાત્ર હોય એવા વસ્ત્ર પહેરવા પડે, પરંતુ वह तो देह अभिमानी है, शरीरનું અભિમાન છે ને। तो यहाँ तो है बेहद की बातें, देही अभिमानी बनना है। અહીંયા બધી વાતો કઈ છે? બેહદની આત્માભિમાની બનવાની વાતો છે। हम असुल आत्मा ही है, अभी हमारा पाठ पूरा होता है। ओरिजिनल स्वरूपમાં આપણે આત્મા છે, આપણો પાઠ પૂરો થયો। बाप सन्मुख बैठ सब कुछ तुमको समझाते, यह भूल नहीं जाना। તો બાબા સન્મુખમાં બેસીને સમજાવે છે। તો બાબા કહે છે કે આટલું સરસ જ્ઞાન છે, ઊંચા મહાવાક્યો છે, તેને ભૂલી નથી જવાના। माया कितने विघ्न डालती है, बाप समझाते हैं बच्चे तुमको कोई भी विकर्म नहीं करना है। माया गમે તેટલા વિઘ્નો નાખે પણ બાબા શું કહે છે? बच्चे ये ध्यान रखना है कि कोई भी विकर्म न हो। मनसा तूफान बल बहुत आएंगे, मनसा तूफान बहुत आएंगे, अपनी परीक्षा लेनी है। हमारी कर्मेंद्रिया चलायमान तो नहीं होती, परिस्थितियों आवशे, तूफान आवशे, संघर्ष आवशे, बधुं ज आवशे,
પરંતુ એ આપણી પરીક્ષા લેવા માટે આવે છે। એ સમયે ચેક કરવાનું કે આપણી કર્મેન્દ્રિયો ચલાયમાન તો નથી થતી। हम काम को जीत सकते हैं। तुम्हारे लिए तो बहुत सहज है। हम आत्मा है, एक बाप के बच्चे हैं। આપણે કોણ છે? એક નિરાકાર પરમપિતા પરમાત્માના સંતાનો છીએ। આપણી આત્મા છે। बाप से ही योग लगाना है। कर्मेंद्रियों में चलायमानी होना यह भी देह अभिमान हुआ। કર્મેન્દ્રિયોમાં બી ચલાયમાન થવાના અહીંયા જ્ઞાન સાંભળવા બેઠા છે, સામે મુરલી ચાલુ છે અને આપણી મન બુદ્ધિ બીજે બીજે ભટકે એ બી કર્મેન્દ્રિયોની ચલાયમાન છે। તો બાબા કહે છે કર્મેન્દ્રિયોના ચલાયમાન થવું એટલે શું સમજવાનું? तो समझना देह अभिमान हुआ। तुमको कोई से भी डरना नहीं है, निर्भय बनना है। कभी भी कहा जाओ तो साक्षी हो देखना है। बाबा कहे छे ज्यां पण जाओ साक्षी बनीने जुओ, निर्भय बनीने रहेवानुं छे, कोईनाथी डरवानुं नहीं। हम तो आत्मा है। इस खेल को तुम पूरा जान गए हो ना। ऊंच ते ऊंच बाप है, यह बुद्धि में आया है। उनको बिंदी कहा जाता है। ऊंचा में ऊंचा कौन से? निराकार परम पिता परमात्मा। निराकारी दुनिया में आत्माओं का जाड़ है। बीज से जाड़ निकलता है, फिर नंबरवार पत्ते आते हैं। यह भी ऐसे है। बीज माथी जाड़नी उत्पत्ति थाय छे, पछी नंबरवार पत्ता आवे छे। ऊपर से नंबरवार आत्माएं आती है। आत्मा प्रवेश कैसे करती है, निकलती कैसे है, यह कोई देख न सके। आत्मा उपरथी आवे, शरीर गर्भमां प्रवेश कई रीते करे, शरीरमांथी कई रीते बहार निकळे छे, कोई जोई तो शकतुं नथी। अब बाप समझाते हैं तुम्हारी आत्मा पतित हो गई है, उनको पावन बनाओ। बाबा शू समझावे छे? आत्मा पतित थई गई छे, हवे ए आत्माने पावन बनाओ। इन द्वारा बाप बैठ समझाते हैं। बाप तो कर्मेंद्रियों से करते हैं ना, सॉरी बात तो कर्मेंद्रियों से करते हैं। बाबा ब्रह्मातननी अंदर प्रवेश करीने समझावे छे, तो ब्रह्मातननी जे कर्मेंद्रियों छे ए कर्मेंद्रियोनो उपयोग करीने वात करे छे। आत्मा बिंदी इसमें नहीं होती तो कर्मेंद्रिया कुछ कर ही नहीं सकती। आ शरीरनी कर्मेंद्रियों छे, परंतु आत्मा बिंदु आ शरीरनी अंदर होय ज नहीं, तो कर्मेंद्रियों कई काम करशे? इतनी छोटी बिंदी कितनी पावरफुल है, उनमें सारी नॉलेज है। आत्मा छे छोटी बिंदी पर કેટલી શક્તિ છે, આખા આવડા મોટા શરીરને ચલાવે છે। हाँ, એની અંદર કેટલું બધું જ્ઞાન ભરેલું છે। बाप ज्ञान का सागर है, जो तुमको बैठ समझाते हैं। उनमें सारा ज्ञान है। बाबा ज्ञानना सागर छे, जे बेसीने ज्ञान आपी रह्या छे, एमने अंदर बधुं ज्ञान छे। यह भी उनका पाठ नोंधा हुआ है। तुम्हारी आत्मा में भी 84 जन्मों का पाठ है। अपनी आत्मा नी अंदर भी 84 जन्मों पाठ छे। तुम दुख सुख का पाठ बजाते हो। क्यारेक दुख क्यारेक सुख भोगवीए छे। दुख में बहुत तकलीफ लेते हो। बाप कहते हैं मैं तो पुनर्जन्म में आता नहीं हूँ। बाबा शू कहे छे? हूँ पुनर्जन्म में नहीं आवतो, माटे मारे कोई दुखनी तकलीफ भोगवानी आवती नहीं। तुम 84 जन्म लेते हो, मैं तो नहीं लेता। तमे 84 जन्मों लो छो, हूँ 84 जन्मों ना चक्कर में नहीं आवतो। मैं आकर तुम बच्चों को सहज युक्ति बताता हूँ कि मुझे याद करो तो पावन बनेंगे। बाबा सहज युक्ति कई बतावे छे? मने याद करो तो पावन बनशो।
आधा कल्प तुम काम चिता पर बैठ तमो प्रधान बने हो। आत्माओं से ही बाप बात करते हैं। आत्मा के ऑर्गन्स पहले छोटे छोटे होते, फिर बड़े होते। आत्मा तो छोटी बड़ी नहीं होती। શરીરના અંગો પહેલાં નાના નાના હોય, કારણ કે બાળક સ્વરૂપે હોય, પછી ધીમે ધીમે જેમ જેમ અંગો બી વધતા જાય, શરીર બી વધતું જાય છે। આત્મા કોઈ નાની મોટી નથી થતી હોતી। આત્મા ही कहती है, हे पतित पावन आओ। आत्मा बाप को पुकारती है। बाप कहते हैं, मैं कल्प कल्प आता हूँ तुम पतितों को पावन बनाने। बाबा કેમ આવે છે આ સૃષ્ટિ પર? પતિત આત્માઓને પાવન બનાવવા। अभी तुम जानते हो आत्मा कैसे आती है, जाती है। मनुष्य बहुत माथा मारते हैं। मनुष्य શું કરે છે? બહુ જ માથા મારે છે। देखे आत्मा कैसे निकलती है, परंतु किसी को पता नहीं पड़ता, क्योंकि यह है अति सूक्ष्म। લોકો મહેનત કરે છે કે શરીરમાંથી આત્મા નીકળે, આત્મા કેવી છે અમે જોઈએ, તો એટલા માટે કોઈના અંતિમ શ્વાસ ચાલી રહ્યા હોય તો એ બોડીને શું કરશે? કાચની પેટીમાં પેક કરશે। વૈજ્ઞાનિકો ઘણું શોધવાનો પ્રયત્ન કરે છે, પરંતુ આત્માને જોઈ શકતા નથી, કારણ કે આત્મા અતિ સૂક્ષ્મ છે। छोटी सी आत्मा में कितना पार्ट है। जैसे बीज में सारा ज्ञान है, वह तो बीज है जड़। बड़ का जाड़ होता है और उसका बीज कितना छोटा। वड़નું ઝાડ હોય છે, પણ વડનું બીજ કેટલું નાનું હોય છે। उनसे झाड़ कितना बड़ा लंबा निकलता है। कलकत्ते वाला बड़ का झाड़ कईयों ने देखा होगा। बहुत बड़ा झाड़ है। अब उनका फाउंडेशन सारा सड़ गया, बाकी झाड़ खड़ा है। वडની અંદર તો એવું જ હોય ને, વડમાં કેવું હોય કે ઝાડ મોટું થાય, પછી એમાંથી વડવાઈઓ નીકળે, તો વડવાઈઓ એ જ પોતે થડ બની જાય, અને જે મૂળ થડ હોય એ તો ખબર જ ના હોય કે મૂળ થડ કયું છે, તો મૂળ થડ તો ક્યાંક સડી ગયેલું હોય, પરંતુ ઝાડ ઊભું હોય। तो बाप कहते हैं, कलकत्ते में भी बड़ का झाड़ था, फाउंडेशन सारा सड़ गया था, बाकी झाड़ खड़ा है। यह भी ऐसे है। देवता धर्म का फाउंडेशन है नहीं, झाड़ की भी अब जड़ जड़ीभूत अवस्था है। જે દેવી દેવતા ધર્મનું ફાઉન્ડેશન હતું એ અત્યારે નથી, બાકી ઝાડ ઊભું છે। यह भी तुम जानते हो। तब तो गवर्नमेंट को भी कहते हो कि हम इतने समय में दुनिया को पावन बनाकर दिखाएंगे। કંઈ ખબર છે કે હવે કળિયુગનો અંત છે અને નવી દુનિયા, પાવન દુનિયા આવવાની તૈયારી છે, परंतु मनुष्य इन बातों को समझ नहीं सकते। दुनियावाला आ बातों ने समझी सकता नहीं। तुमको तो निश्चय है कि हम इस भारत को श्रेष्ठाचारी जरूर बनाएंगे। आपण तो निश्चय छे ने कि आ भारत ने श्रेष्ठाचारी जरूर थी बनावीशुं। तब तो भ्रष्टाचारी दुनिया का विनाश होगा। निश्चय हसे तो विनाश थसे। यह जो चाहते हैं शांति हो जाए, आत्मा पाठ बजाते बजाते थक गई है, इसीलिए तो पुकारती है। आत्मा पाठ भजवता भजवता तो थाकी गई छे, એટલા માટે ભગવાનને પુકારે છે, हे शांति देवाओ। यह थोड़े ही समझते हैं आत्मा शांत स्वरूप है, કારણ કે એ તો સ્મૃતિ છે જ નહીં કે આત્મા, આપણે આત્મા છીએ, આપણી આત્માનો ઓરિજિનલ સ્વધર્મ શાંત છે। એ શાંતિ તો કોઈને યાદ રહેતી નથી। परंतु यहाँ आत्मा को कर्मेंद्रियों द्वारा कर्म तो जरूर करना ही है। शांति दो कहते हैं, परंतु यह किसी को पता नहीं है कि शांति धाम अलग है और सुख धाम अलग है। दुनिया वाला ने ये भी खबर नहीं कि शांति धाम अलग छे, सुख धाम अलग छे।
सुखधाम में बहुत थोड़े मनुष्य होते हैं, वह है ही पवित्र दुनिया। સુખધામ એટલે સતયુગ, જેને આપણે સ્વર્ગ કહીએ છીએ, કે જે પવિત્ર દુનિયા છે, જેની અંદર થોડીક જ આત્માઓ રહેતી હોય છે। વહ શાંતિ તો કોઈ માંગતે નહીં, કારણ કે ત્યાં શાંતિ શાંતિ છે, ત્યાં કોઈને શાંતિની જરૂરત જ નથી હોતી, કારણ કે ત્યાં હરેક આત્મિક સ્થિતિમાં સ્થિત હોય છે અને આત્માની સ્મૃતિ હોય છે। कर्म तो वहाँ भी करते हैं, परंतु वहाँ अशांति नहीं होती। जीवन मुक्ति धाम अथवा शांति धाम दोनों अलग अलग है। तो जीवन मुक्ति धाम कहो, सुख धाम कहो, सतयुग कहो, स्वर्ग कहो, बहिष्ठ कहो, तो ये બધું એક છે। અને શાંતિધામ, પરમધામ, મૂળ વતન, हाँ, तो ये अलग दुनिया છે। सतयुग में जीव आत्माओं को सुख भी है तो शांति भी है। सतयुगમાં जीव आत्माओने सुख भी છે तो शांति भी છે, परंतु परमधामમાં खाली शांति જ છે। एवर हेल्दी वेल्दी भी रहते हैं, सतयुगમાં एवर हेल्दी वेल्दी भी છે। तो अभी तुम जानते हो स्वर्ग किसको कहते हैं? दुनिया में यह किसी को पता नहीं है कि स्वर्ग क्या है। यह लक्ष्मी नारायण बच्चे हैं ना, इन बच्चों को भी सुख किसने दिया? बाबा કહે છે આ લક્ષ્મીનારાયણ બચ્ચે હે ના, તો લક્ષ્મીનારાયણને બી સુખ કોને આપ્યું? સતયુગમાં લક્ષ્મીનારાયણને રાજગાદી મળી, રાજાઈ મળ્યું, સુખ સાહેબી બી મળી, તો એ સુખ કોણે આપ્યું? तो कोई तो सुख देने वाला है, क्या इन्हों का फिर राज्य आने वाला है? લક્ષ્મીનારાયણને સુખ કોને આપ્યું? તો શું એમનું રાજ્ય ફરીથી આવવાનું છે? स्वर्ग जरूर रिपीट होगा। स्वर्ग में जब होंगे तो वहाँ ऐसे नहीं कहेंगे कि नर्क फिर से रिपीट होगा। સ્વર્ગમાં જ્યારે હશો ત્યારે એવું નહીં કહીએ કે નર્ક ફરીથી રિપીટ થશે, કારણ કે સ્વર્ગમાં જ્યારે હોઈએ છીએ ત્યારે નર્કની સ્મૃતિ હોતી નથી। અભી કહતી હો पवित्रता सुख शांति की नई दुनिया फिर से रिपीट होंगी। कई दुनिया रिपीट थશે? पवित्रता सुख અને શાંતિની દુનિયાનું ફરીથી આગમન થવાની તૈયારી છે। यह तो पुरानी दुनिया दुखधाम है, इनको आयरन एज कहा जाता है। नई दुनिया भी तो थी ना। અત્યારે કઈ દુનિયા છે? પુરાની દુનિયા છે, નવી દુનિયા તો હતી। यह तो पुरानी दुनिया दुखधाम है, इनको उनका विनाश भी होना है, नई दुनिया भी आएंगी, उसको स्वर्ग कहते हैं। यह ज्ञान तुम्हारी बुद्धि में ठहरा हुआ है। सतयुग कलयुग स्वर्ग नर्क क्यारे आवे छे, क्यारे जाए छे, तो बाबा के छे आ बधुं ज्ञान तमारी बुद्धि में बेसेलुं छे। बरोबर हम फिर से देवी देवता बन रहे हैं। तुम्हारी एम ऑब्जेक्ट ही यह है, हम फिर से स्वर्ग की बादशाही लेते हैं। आपनुं लक्ष्य शुं छे? फरीथी स्वर्गनी बादशाही प्राप्त करवानुं। तो बेहद के बाप से वर्षा जरूर पाएंगे। यह अच्छी रीति याद करना है। क्या याद करना है? बेहदना परम पिता परमात्मा पासेथी वारसो मेळवવાનો છે। આપણે વારસાના હકદાર છીએ। तो बाबा કહે છે ये अच्छी रीति याद करना है। हम आत्माएं वहाँ रहती हैं, फिर हम यहाँ आए हैं पार्ट बजाने। રહેવાવાળા ક્યાંના છીએ? પરમધામના। અહીંયા આવ્યા છીએ પાઠ ભજવવા। अब स्मृति मिली है, 84 जन्म कैसे लेते हैं? બાબાએ હવે સ્મૃતિ આપી કે આપણે 84 જન્મ કઈ રીતે લઈએ છીએ। તો બાપ સમજાતી भी है। શું સમજાવે છે? તો बाप समझाते भी हैं कि तुम ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मणों को है। हाँ, बाबा कहते 84 जन्म कैसे लेते हैं, पाठ किसने बजाया? तो ये बाबा कहते तुम ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मणों को है।
ब्राह्मण बनने बिगर, प्रजापिता ब्रह्मा का बच्चा बनने बिगर शिव बाबा से वर्षा कैसे पाएंगे? જ્યાં સુધી બ્રાહ્મણ નહીં બનીએ, પ્રજાપિતા બ્રહ્માના બાળક નહીં બનીએ તો શિવ બાબા પાસેથી વારસો બી કઈ રીતે મેળવીશું? तो प्रजापिता ब्रह्मा तो मशहूर है ना, ब्रह्मा द्वारा नई दुनिया की स्थापना करते हैं, तो नई दुनिया का राज्य भी जरूर उन्हों को। ब्रह्मा द्वारा बाबा શું કરે છે? નવી દુનિયાની સ્થાપના કરી રહ્યા છે, તો જેના દ્વારા બાબા નવી દુનિયાની સ્થાપના કરે છે तो जरूर उन्हों को मिला होगा। 5000 वर्ष पहले भी ब्रह्मा द्वारा विष्णुपुरी की स्थापना की थी। 5000 वर्ष पहला ब्रह्मा द्वारा विष्णुपुरी की स्थापना करी हती। अब फिर रिपीट होगा, उसके लिए तुम तैयारी कर रहे हो। बाबा ब्रह्मा द्वारा स्थापनाનું કાર્ય કરાવી રહ્યા છે કે જેના માટે આપણે તૈયારી કરી રહ્યા છે। कई बच्चे पूछते हैं, ड्रामा को बड़ा माने वा पुरुषार्थ को बड़ा माने? हाँ, बाबाना घણા બાળકો શું પૂછે છે? ડ્રામાને મોટું માને કે પુરુષાર્થને? समझाया जाता है पुरुषार्थ तो जरूर करना ही है। क्या करना है? पुरुषार्थ तो जरूर करना है। घણા લોકો एक प्रश्न है कि कर्म थी भाग्य बने के भाग्य में हसे तो कर्म करीश? हाँ, तो एज बात है ना, पुरुषार्थ बड़ा या ड्रामा बड़ा? तो बाबाए कह્યું કે કર્મથી ભાગ્ય બને છે અને ભાગ્યમાં છે તો કર્મ કરીશું, એ બંને ઓલ્ટરનેટિવ છે। અગર કર્મ કરીશું તો ભાગ્ય બનશે, પણ ભાગ્યમાં હશે તો ભાગ્ય બી ક્યારે બનશે? જ્યારે કર્મ કરીશું ત્યારે ને। તો કર્મ વગર ભાગ્ય બી ક્રિએટ થતું નથી। तो पुरुषार्थ तो करना है। कोई अच्छी रीति पुरुषार्थ करते हैं तो समझा जाता है ड्रामा अनुसार इनका पुरुषार्थ अच्छा चलता है, पद भी अच्छा पाएंगे। उनका पुरुषार्थ बहुत तीव्र चलता है, फिर चलते चलते कोई का पद कम भी हो जाता है। हाँ, बाबा के जे कोई सारो पुरुषार्थ करे तो समझમાં આવે કે ડ્રામા અનુસાર એનો પુરુષાર્થ સારો છે, પરંતુ ચાલતા ચાલતા પુરુષાર્થમાં કમી પડી તો પદ भी कम થઈ જાય છે। ब्राह्मणियाँ जानती हैं, ब्राह्मणियों के पास आने वाले भी जानते हैं, फलाना बहुत अच्छा चलता था, आजकल आते नहीं हैं, कहते हैं हमारी बुद्धि में पता नहीं क्यों नहीं बैठता है। घણા લોકો આવતા હોય તો પછી શું કહેતા હોય? ખબર નહીં અમારી બુદ્ધિમાં કેમ આ જ્ઞાન બેસતું નથી। बाबा को हम याद क्यों नहीं कर सकते हैं? बस हम नहीं चल सकेंगे, बड़ी मंजिल है, ऐसे ऐसे लिख देते हैं। मूल बात है ही निर्विकारी बनना। मुख्य बात ज्ञाननी कई छे? निर्विकारी बनो। विकारों को छोड़ना बड़ा मुश्किल है क्या? तुम जानते हो ड्रामा अनुसार कल्प पहले मिसल इनकी ऐसी अवस्था चली आ रही है। ड्रामा अनुसार 5000 वर्ष पहला जेने विकारों ने छोड़्या हसे, निर्विकारी बन्या हसे तो पोतानी एवी अवस्था बनावी शकशे। अच्छा, मीठे मीठे सिकेलते बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। पहली पॉइंट, इस बेहद के खेल को साक्षी हो देखना है।
આ રમત કેવી છે? બેહદની રમત છે. તો આ બેહદની રમતની અંદર જે પણ જુઓ એ સાક્ષી બનીને જુઓ. कोई से भी डरना नहीं है, निर्भय बनने के लिए मैं आत्मा हूँ, यह पाठ पक्का करना है. निर्भय बनो, अपनी जांच करके स्वयं की परीक्षा लेनी है कि कोई भी कर्मेंद्रिय ચલાયમાન તો નહીં હે. સ્વયંનું ચેકિંગ કરો અને ચેકિંગ કરીને કેવા બનો? પોતાની પરીક્ષા કરો, ચેકિંગ કરો કે આપણી કોઈ બી कर्मेंद्रिय चलायमान तो नहीं, काम विकार पर विजय पाई है, देही अभिमानी कहाँ तक बने हैं, ये सब चेकिंग करनी है. वरदान, कंबाइंड स्वरूप की स्मृति और पोजीशन के नशे द्वारा कल्प कल्प के अधिकारी भव. कंबाइंड स्वरूप माना मैं और मेरा बाबा. कई स्मृति? मैं और मेरा बाबा. इस स्मृति में कंबाइंड रहूं. यह श्रेष्ठ पोजीशन सदा स्मृति में रहे कि हम आज ब्राह्मण हैं, कल देवता बनेंगे. कई स्मृति राखवानी छे? पहलू मैं और मेरा बाबा કમ્બાઇન્ડ સ્વરૂપની સ્મૃતિ રહેશે તો શ્રેષ્ઠ પોઝિશનની સ્મૃતિ સદાય રહેશે. કયા શ્રેષ્ઠ પોઝિશનની? ब्राह्मण है आज, कल देवता बनेंगे. हम सो हम का मंत्र सदा याद रहे तो इस नशे और खुशी में पुरानी दुनिया सहज भूल जाएगी. कयो मंत्र? हम सो आत्मा, हम सो आत्मा सो देवता, देवता सो क्षत्रिय, क्षत्रिय सो वैश्य, वैश्य सो शूद्र, शूद्र सो ब्राह्मण, ब्राह्मण से फरिश्ता, फरिश्ता सो देवता. तो बाबा के जे हम सो हम का मंत्र याद रहे तो नशे और खुशी में पुरानी दुनिया को सहज भूल जाएंगी. सदा यही खुमारी रहेंगी कि हम ही कल्प कल्प की अधिकारी आत्माएं, हम ही थे, हम ही हैं और हम ही कल्प कल्प रहेंगे. આપણે હતા સતયુગમાં, આપણે છીએ અત્યારે અને પાછા આગળ આપણે જ રહેવાના છીએ. સ્લોગન, स्वयं का स्वयं ही टीचर बनो तो सर्व कमजोरियां स्वतः समाप्त हो जाएंगी. શું કરવાનું છે? સ્વયંના ટીચર બની જાઓ, શિક્ષક બની જાઓ, ચેકિંગ કરો તો બધી જ કમજોરીઓ ઓટોમેટિક દૂર થઈ જશે. અચ્છા, ઓમ શાંતિ.